گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہار و غفار و قدوسی و جبروت، قہار و غفار و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا پھر رنگ میری نوابوں کتاب۔ محترم صدر انجمن اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج اسلام دشمن طاقتیں اور قاتل قوتیں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اسلام کی طرف دہشت گردی کا انتصاب کر رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مرتب کردہ منصوبہ کا یہ بھی ایک جز ہے، اور جو کہ ذرائع ابلاغ ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اپنے بدترین منصوبوں کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے میں ناکام نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں شیران اسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اسلام کی پسندی کو چڑھتے سورج کی طرح واضح کریں اور اس لیے دہشت پسندوں کو بے نقاب کر دیں۔ اسی کوشش میں لب کشائی کرنے جا رہی ہوں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس زبان کو باطل کے لیے شمشیر برہنہ اور حق کی سچی ترجمان بنائے۔ حضرات، اصل حاصل میں لفظ دہشت گردی کو جو شہرت حاصل ہوئی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر صبح و شام کسی نہ کسی موقع پر یہ لفظ کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر نئے لمحہ کے ساتھ پوری دنیا پر دہشت گردی کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ممالک اور اقوام بھی دہشت گردی کی راہ پر گامزن ہیں، جو آگے بڑھ کر ان پسندی کا نعرہ لگاتی ہیں اور دہشت گرد ہونے کا الزام دوسروں کے سر تھوپتی ہے۔ دہشت پسندی انگریزی لفظ ٹیررزم کا اردو ترجمہ ہے، جس کی صحیح تعریف یہ ہے کہ بے قصور اور معصوم افراد کو ہراساں کرنا اور ظلم و ستم اور قتل و غارت گیری پھیلانا۔ اب یہ تکلیف چاہے میزائلوں اور بندوقوں سے مچائی جائے یا زبان یا ہاتھ کو حرکت دے کر، یہ سب دہشت گردی سے باہر نہیں۔ البتہ اگر ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے تو دہشت گردی کے زمرہ میں نہیں آتا۔ دہشت گردی کے اصلی مفہوم کی روشنی میں کون دہشت گرد ہے اور کون من پسند ہے، اس بے خبری اور غلطی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دہشت پسندی کا رشتہ ہر اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیتے جس کے بارے میں مغربی میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ مگر جو وقت بڑھتا جا رہا ہے اور اسلام پر مغرب کی نگاہیں تیز ہو رہی ہے، دنیا کی قوم اس لفظ اسلام کے ساتھ خاص کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا دہشت گردی سے گہرا تعلق ہے، تاکہ دنیا اسلام سے فرار اختیار کرے اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف مسلمان اسلام سے دوری اختیار کریں۔ حالانکہ اسلام عربی لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ من پسند ہے، جس کے جز میں سلامتی ہے، جس کی تمام تعلیمات امن و امان سے لبریز ہیں، جس کی تمام احکامات چین و سکون کی ضمانت دیتے ہیں۔ حضرات، اسلام اور دہشت گردی کے معنی بیان کرنے کے بعد میں پوری قوت کے ساتھ یہ دعویٰ اور چیلنج کرتی ہوں، اسلام اور دہشت گردی سے جوڑنے والوں کی نظر شاید تاریخ کی اس بات تک نہیں پہنچی جب 36 صدی عیسوی میں عالم انسانیت دم توڑ رہی تھی، فضائے کائنات پر دہشتوں پر برقع خوفناک بادل منڈلا رہے تھے، ہر طرف جبر و تشدد اور ظلم و عدوان کی وحشتناک ہوائیں چل رہی تھی، کمزوروں پر ستم انگیز آگ برسائی جا رہی تھی، مذہبی کتابوں میں من مانی تحریف ہو چکی تھی، انصاف اور شرافت کا نام و نشان نہ تھا، جہالت کو شباب پر تھی، غرض کے انسان درندگی اختیار ہو چکا تھا۔ اچانک رحمت خداوند کی جوش میں آئی، پھر کیا تھا؟ اسم شب اور تیرگی کفر میں اسلام کا وہ شرارہ چمکا جو اچانک سارے عالم پر چھا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کفر و شرک کی تاریخیں چھپنے لگے، ترسیمات باطلی پردے سینکنے لگے، ظلم بربریت کا زور ٹوٹنے لگا، حیوانات و درندگی انسانیت کی جگہ لینے لگی، جہالت کی تاریکیوں میں علم کے شمع روشن ہونے لگے، من چاہی زندگی اور اب چاہی راہ اختیار کرنے لگے، بدکاری و زنا لذت لوگ عفت و حیا کے محافظ بن گئے، حقوق و معاشرت سے بے پرواہ لوگ سیاست اور روحانیت کے اعلیٰ مثال بن گئے، اور اس نے اخلاق اور سعادت و شرافت کا وہ ڈنڈا بجا کہ ایک قلیل عرصہ میں ساری دنیا کی سلطنت اسلام اور مسلمانوں کے قدموں پر گر پڑی اور صدیوں تک مسلمان کے ساتھ ختم پناہ لیتی رہی اور اس کے حسن سلوک سے استفادہ کرتی رہی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے؟ کیا صداقت اور شفقت کا قتل عام نہیں ہے؟ وہ اسلام جسے سسکتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی، وہ اسلام جسے دہشت گرد
गर्दी के आग में भटकी हुई दुनिया को अमन सलामती की खुशगवार राह बतलाई। आज इसी इस्लाम पर दहशत गर्दी का बदनुमा दाग लगाया जा रहा है। हद हो गई खसासत और रिजालत की, एहसान फरामोशी की। आज रोशन खाली का दावा करने वाली दुनिया और इस दहशत गर्दी के नाम पर लाखों बेकसूरों को हलाक करने वाली दुनिया इस्लाम जैसे मनपसंद मजहब पर तरह के जमात और तहमात की यूरिश कर रही है। ऐसे वक्त में हमारे ऊपर वाजिब होता है कि हम भी उनके दिलेरा दहनी का दंदाने शिकन जवाब दें। इस्लाम और मुसलमानों को बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी के इल्जाम लगाने वाले इनको चश्मों से सवाल करें कि साबिक़ अमरीकी सदर कनेडी के कातिल कौन थे, खादिम हुरमैन शाह फैसल को कत्ल करने वाले कौन थे, आज जहानी महात्मा गांधी पर गोलियां चलाने वाला आतंकवादी कौन था, इसके पीछे कौन सी दहशतगर्दी कार फरमा थी, साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का खून बहाने वाले दहशतगर्द कौन थे, राजीव गांधी के जिस्म के पर खच्चे सुरा देने वाले दहशतगर्द कौन थे, नेपाल के शाही खानदान का सफाया करने वाले दहशतगर्द कौन थे, अलगर्ज इन तमाम तारीखी हस्तियों के कत्ल में कौन सा मुसलमान मिलता है बताओ। फिर तुम इस्लाम पर दहशतगर्दी के इल्जाम से बाज आ जाओ और उसमें पूरा फरेब और सियासत झूठ रोइजा को छोड़ दो। इस्लाम पर इल्जाम लगाने वाली मगरबी सुलैवी अक़वाम से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर तुम दहशतगर्द नहीं हो तो बताओ और इस हकीकत का जवाब दो कि मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन पर नाजायज़ यहूदी ममलिकत मुसल्लत किसने किया और ये ज़ालिमों की पूरी पुष्टपनाही क्यों की जाती है। बोस्निया और यूगोस्लाविया के हज़ारों मुसलमानों का कत्ल आम क्यों किया, वहाँ के हज़ारों मुसलमानों का कत्ल आम क्यों किया, उदलिस से मुसलमानों का सफाया क्यों किया। सऊदी अरब और बेशतर मुस्लिम ममालिक में तुम्हारे फौज दस्ते के ठिकाने बनाए हुए हैं। इराक और ईरान को बरसों तक किसने लड़ाया, इराक को कुवैत पर हमला किसने उकसाया, अफगानिस्तान को हथियार कौन फराहम करता रहा और उन्हें बरसों तक आपस में कौन लड़ाता रहा, जापान के लाखों अफराद को अचानक मौत का शिकार किसने किया। बताओ क्या ये आलमी दहशतगर्दी नहीं है, बताओ क्या ये जुल्म और सितम की आखिरी हद नहीं है। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क की गैसे बढ़म को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क की गैसे बढ़म को, ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। मोहतरम हजरात, तारीख की समन सलामती और इस्लामी इनकलाब को कैसे भुलाया जा सकता है, जबकि आलम इस्लामी इक़्तिदार के बाद किसी फर्द की जुर्अत कहाँ थी वह कमजोरों पर ज़्यादती कर सके। अगर समाज में कोई शादीशुदा ज़िना में मुर्तकिब होता तो आइंदा इस तरह कभी हक़ पर बंदिश लगाने और निज़ाम को तवाज़ुन में रखने के लिए संसार कर दिया जाता। अगर कोई चोरी करता तो उसके हाथ काट दिए जाते, इससे गलत हरकत करने की किसी में हिम्मत न होती। अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म ढाता तो मज़लूम को इंतकाम का हक दिया जाता। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता तो इवज़ में उसे भी कत्ल कर दिया जाता। इसी तरह हर शख्स पुरसुकून हो गया था, न मिसबतों की बर्बादी का खतरा था, न माल लुटने का अंदेशा था, न तशद्दुद और बर्बरियत का खदशा था, न नाइंसाफी और आज़ादी का खौफ था, न दहशतगर्दी का कोई अलमिया था, न अमन का कोई दुश्मन था। क्या इससे बेहतर और इससे ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी का तस्वुर मुमकिन है? क्या तारीख़ इंसानी में इससे बेहतर कोई माशरा बता सकती है? और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली अपनी अक़वाम इस बेराह रवि और तबाहकारी पर नजर क्यों नहीं डालते, जिन्होंने आज़ादी निस्वां के नाम पर मोहलिक के दस लानत को जन्म दिया है, जिन्होंने मसावात के नाम पर खानदानी और नस्ली निज़ाम को दहम बहम कर दिया है। इनकी औरतों की बेक वक्त की कई शौहर होते हैं। इनके मुल्कों में हराम बच्चों की तादाद अक्सरियत को पहुँचने जा रही है। इनके औलाद वालिदैन की खिदमत को साथ नहीं समझती, उनके पूरे हॉस्टलों के हवाले होते जा रहे हैं। उनके बच्चे माँ की गोद से कोसों दूर हैं। इनके यहाँ कुत्ती विरासत के हकदार होते हैं। इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, चैन सुकून का फुकदान हो रहा है, खुलूस मोहब्बत की चादर तार तार की जा रही है। बजाय वो अपनी अक़वाम की बेराह रवि को दूर करने की सोचते, मगर इस्लाम की तालीमात पर ज़र लगाने मशगूल हैं। इस्लाम को दहशतगर्दी के खतरा बतलाया जा रहा है। अरे कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम की सरवादारी पर। क्या आपके ज़माना में एक मुसलमान ने पुरअमन गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान का हक़ क्या था, और उस गैर मुस्लिम के नाम कत्ल को मुसलमानों को क़सास में कत्ल कर दिया गया। इसी तरह और बेशुमार मिसालें तारीख के रोशन अल्फाज पेश करते ही रहते हैं। हज़रात, इस्लाम का गैर मुस्लिमों के साथ सलूक देखिए। अगर कोई मुसलमान भी गैर मुस्लिम खातून की इस्मत दरी करेगा तो बदले में उस मुसलमान को संसार या कुरों की सजा दी जाएगी। अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम का माल मुसलमान चोरी करता है तो बदला में हाथ काट दिया जाएगा। इसी तरह इस्लाम ने गैर मुस्लिमों को पूरे हुकूक से नवाजा है। अब जरा रुक कर अपने ज़मीर से आदिलाना फैसला करें, इस्लाम दहशत पसंद है या अमन पसंद। मग़रिबी अक़वाम ये बात क्यों नशर कर रही है, इस्लाम इंसानियत का दुश्मन है और
जद्दो आबू का मुखालिफ है और आज़ादी राय में रुकावट है। अगर उनके कहने के मुताबिक गैर मुस्लिमों के साथ इंतहाई घिनौना सलूक करने के दर पे है, तो फिर भी उसकी तालीमात गैर मुस्लिमों के हुकूक से लबरेज हैं। क्यों कुरान करीम में बहुत सी आयत इस बात का मुतालबा करती है इंसानियत का लिहाज किया जाए और इंसानियत को पामाल न किया जाए। क्या ऐसे भी ज़्यादा ये कि जहाँ इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो रहा हो और उसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद किया जाए, क्या मगरबी की नज़र में इंसानी दुश्मनी है? हकीकत ये है कि इसे झूठा प्रोपेगेंडा है जिस हकीकत नाम को भी नहीं। इस्लाम के बारे में तमाम खैरात तस्बीत अदावत पर मबनी है, सदाकत और हकीकत पर नहीं। क्योंकि इस्लाम की तालीमात जो कि तो आज भी जिंदा है, जिनमें बराए नाम की तहरीफ नहीं हुई, इन तालीमात से बिल्कुल भी जमात की तस्दीक नहीं होती बल्कि तरदीद ही होती है। मगर अफसोस लोग इस्लामी तालीमात से ना आशना है। महज चंद जाहिल इस्लामी तालीमात से नावाकिफ मुसलमानों की शरारत को बहाना बनाकर मजहब इस्लाम पर ढिंढोरा पीटना सख्त नादानी की बात है। जरा ठंडे दिमाग से गौर करें, इस्लाम का मकसद लोगों पर जुल्म करना होता, जबरदस्ती उन्हें दीन इस्लाम पर मजबूर करना होता। अगर गैर मुस्लिम की ज़ाती रंजिश गैर मुस्लिम अफराद से होती और वो अपने इस बात को पसंद न करता वो खुदा के से ज़मीन में जिंदा रहे, तो फिर क्यों उन्हें मजहबी आज़ादी दी जाती? क्यों उनके हुकूक मुसलमानों पर लाजिम करार देता? क्यों इंसानी जानों की हिफाजत, आदमियत की ताज़ीम की हिफाजत और औरतों के नामूस की हिफाजत मुसलमानों पर आयद करता? आप खुद ये फैसला कीजिए कि इस इस्लाम में क्यों है? क्या इस्लाम में नरमी की बात है या सख्ती की बात? क्या ये दहशतगर्दी है या अमन पसंदी? हाज़रीन किराम, आज हमारे सामने दुश्मनों का बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इस्लाम के ज़मात को गड्ढे में दफन करने के लिए अपनी पूरी सलाहियतों के साथ मसरूफ़ हैं और हम पर अपने ज़मात को ज़मीन दोज़ कर देने की जिम्मेदारी है। वो इस्लाम के खिलाफ जहर को फिज़ाओं में फैलाने की तक कोशिश में लगे हुए हैं और अब इस्लाम की अज़मत को चढ़ते सूरज की तरह हया करने की जिम्मेदारी है। वो इस्लाम के खिलाफ जहर को फिज़ाओं में फैलाने की तक कोशिश में लगे हुए हैं और हम लोग जारी वक्त जारी कर देने की जिम्मेदारी है। वो दुनिया को अपनी फिरौनत और शैतानत की पैसा बनाने के दर पे है और हम दुनिया को खुदाई निज़ाम और इस्लामी निज़ाम का दिलदादा बनाने की जिम्मेदारी है। फिर चश्मे फलक जालिमों का वो हशर दोबारा देखेगा जो हशर इब्राहिम से टकराकर नमरूद का हुआ था, जो हशर मूसा से टकराकर फिरौन का हुआ था, जो हशर खातुन नबीन से टकराकर मुशरिकीन मक्का का हुआ था, जो हशर उलमा देवों से टकराकर सुलेबियों का हुआ था। बिलआखिर जालिमों के घुटने टेकना ही पड़ता है और हक के सामने बड़ी सी ताकत को भी सिर नगो होना ही पड़ता है। वो खाली नहीं तारीख इस वक्त क्यों नहीं सीखते और इस्लामी दुश्मनी से बाज क्यों नहीं आते? इस्लाम एक खुदाई पैगाम है और दायन की कामयाबी का वाहिद रास्ता है। गुलामी में नाकाम आती है न शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़-ए-यक़ीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजों का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजों का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मेरे गयूर इस्लामी भाइयों, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि आज हमारा किरदार भी दुश्मनों का माविन बन गया है और हम इस्लाम को बदनाम करने में हम भी नऊज़ बिल्लाह हिस्सेदार बन चुके हैं। एक इस्लाम के मोहब्बत के दम भरे जाते हैं, दूसरी तरफ गैर इस्लामी अक़वाल अपना कर गैर-ओ-नसा होते हैं। आज इस बात की जद्दोजहद करने की अशद ज़रूरत है कि हमारा हर अमल इस्लाम का सच्चा तर्जमान हो, हमारा रहन-सहन इस्लाम का आईनादार हो, हमारी इफ़्तार और गुफ्तार इस्लाम के प्रचार हो, हमारे मामलात माशरत में इस्लाम की आमेज़श हो, हमारी बाहिर रवायत इस्लाम की खुशबू हो, फिर चश्म हमारा हर कदम और हर रसूलुल्लाह की सुन्नत पर हो, इस्लाम के रास्ते पर हो, तो फिर देखना शैतानी गर्दिश हम से रुख मोड़ लेगी और खुदा की नुसरत रिश्ता जोड़ लेगी। रक़म है ज़ुल्फ़ अयाज़ में, तू राज़ कुन फ़िका है अपनी आँखों पर आया हो जा, तू राज़ कुन फ़िका है अपनी आँखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदी का तर्जमा हो जा। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नूर-ए इंसा को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नूर-ए इंसा को, उख़्वत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़ुबां हो जा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ़क़्त वस्सलाम।